joining in will be let in as and by. So, a very good morning to everyone, and thank you for joining us today. I extend a warm welcome to all of you to this webinar on fundamentals of mooting. This webinar has been organized by Memo. It's in association with CLAW. My name is Shaurajit Bhattacharya, and I'm the founder CEO at CLAW. And today I'll be moderating this session. We also have here with us a very special guest, Mr. Rachnendra Tripathi. He is currently the co-founder and the chief operating officer at Memo Pandits. He graduated from the National Law University, Odisha in 2016, after which he did 2 years in litigation. However, he realized his true calling soon after that, and he's currently mentoring students for moot court competitions. He has helped several students to win accolades in national and international moot court competitions, including the JSFC Memorial Moot Court Competition. So, sir, thank you for being here with us today. I'm sure everyone who is attending this webinar will immensely benefit from the expertise that you have got to offer. So, we'll just add the remaining participants and then we can start. Okay. Thank you for such a warm welcome, Shaurajit. You've been more than nice. Thank you everyone for being here. How many participants do we have by now? We have 135 participants as of now. Oh, that's a good number. People are joining as we speak. So, yeah, so we are good to go, sir. Over to you. Perfect. All right. Hello, everyone. Thank you so much for being here for this webinar. Today, as Shaurajit has already introduced me, so I hope you know me now. And today we'll be talking about the fundamentals of mooting. I hope that you understand that mooting as a subject is so vivid, it's so varied, it encapsulates so many various skills and methods and practices which cannot be shared in 1 hour of a webinar. So we'll be talking about the most fundamental, most basic things which a student who is aspiring to moot needs to take care of. Right. The purpose of this webinar is mostly to remove your fear and make you more comfortable with the entire exercise of mooting. All right. So let's begin. Yeah. Just hold on. Shaurajit, I think I'm not able to access. Yeah, it's fine now. Let me check. So we'll begin by the most basic question: what is a moot court competition? Why should you moot? I'm assuming that most of us are. I'll assume for the benefit of even if there's a single student, I'll assume for the benefit of that student that we all have not mooted by now. And we are going to begin with the very basic. Just bear with me for 10 minutes, and then we are going to, talk about research, drafting, and formatting, and oral arguments and everything. So basically, yeah, this question it's very, on the outset, it's very tough to define things. You know a lot about a lot of things, but when you come to define things, it gets a bit tough. मेरी मम्मी को कभी समझ में नहीं आया था कि मैं मूट करने जा रहा हूँ या फिर मूट के बहाने उनको झूठ बोल के मैं घूमने जा रहा हूँ. I had to explain it to her कि नहीं competition होता है, I have to go, I prepare a lot, मेहनत लगती है, but okay. So it's basically in law colleges, it's a co-curricular activity. Now we've seen कि बहुत ज़्यादा importance बढ़ रहा है. Mooting as an exercise का co-curricular ही है, but still it's gaining a lot of importance in day-to-day life of a law student. And it's basically a mock court. It simulates a court setting जिसमें कि आपको समझ में आता है कि एक real court की functioning कैसे होती है. So in the beginning, you are given a proposition. It's various stages. We'll talk about the stages of moot. जब आप moot choose भी नहीं करते हो, before that the proposition is released. And when the moot proposition का मतलब है the facts. वो sheet जिसपे facts लिखे हुए हैं सारे, जिन facts पे हमें argue करना है, we have to research, we have to draft arguments. So a fact sheet is released. We call it the moot proposition. Moot के rules release होते हैं, and after that we need to register ourselves and pick and choose a moot. Before that, we frame a team also. We'll talk about that in a bit. Once we choose a moot, we need to read the moot proposition as much number of times as we can.
believe me, this is one trick which students often don't know. They folly on that a lot of times. Guys, reading, the importance of reading the mood proposition can never be overstated. The that is the sole trick of cracking the proposition. Actually, you need to read it as many number of times as you can. Once you read the proposition, you get the summary of the facts. फिर आप उस पर रिसर्च करते हो. Once you research, you frame your arguments. Once you frame your arguments, you back them up with the authority जो आपने research की है. And when the arguments are backed up with authority, they are ready to be drafted. Drafting का मतलब we write those arguments in formal language, official language, in a document, and that document we call it a memorial. So the memorial needs to be prepared from both the sides, the plaintiff and the defendant, and then it needs to be submitted to the organizers. जब एक बार मेमो ड्राफ्ट कर लिया, फॉर्मेट कर लिया, एडिट कर लिया, बना के सबमिट कर दिया हमने ऑर्गेनाइजर्स को, उसके बाद हमारे पास यूजुअली 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन भी बचते हैं टू प्रिपेयर फॉर द ओरल राउंड्स, which we will talk about in a while. So this is basically a mood problem, जिसमें ये सारे facets हम डील करते हैं, और इन्हीं पिलर्स पे हम पूरा मूड अपना डिजाइन करेंगे. और इन्हीं पिलर्स पे मैंने ये जितनी भी स्लाइड्स हैं आगे की, we'll talk about each of these 4 pillars in a while. Now the next question is, why should you mood? ये question मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा looming था. In fact, the first mood which I did, I was not sure if I want. I don't know how much you've missed, but I was talking about that students don't have a clarity कि उनको मूड कैसे करना है, कब करना है, तो या करना भी है या नहीं करना है. तो लेट मी टेल यू, मूटिंग जो है आपके 3 गेम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है. द फर्स्ट इज द रिसर्चिंग, सेकंड इज ड्राफ्टिंग, एंड थर्ड इज द ओरल आर्ग्यूमेंट. These 3 are not like a subject. It's not contract law, it's not constitutional law, it's a skill. A subject is different and a skill is different. आप क्लास में पढ़ते हो, मार्क्स लाते हो, you perform well, your score sheets are brilliant, but unless you know how to research, your law firm experience will not be good, believe me. You will be tagged as a person जो बस किताबी कीड़ा है, bookish, bookworm है, और उसको कुछ काम करना नहीं. So these skills are very important. Mooting equips you with all these skills. You know how to research, you know how to draft arguments, very, very important. And then finally, the indispensable, you know how to speak in front of the public. And believe me, guys, as for this English language, fortunately or unfortunately, India as a country has a hangover for English language. It's a need to know and handle this language as best as you can. So if at all, अगर आपका अभी इंग्लिश पे कमांड उतना अच्छा नहीं है, मेरा नहीं था. When I was in my first year, I was not very good at English, at speaking English, or even speaking in front of a large crowd. But over time that improved because I engaged. मैंने practice भी नहीं, I just engaged. I overcame my fear, और फिर वो that became a habit that doesn't remain. That fear just vanishes away. So वो mooting helps you to control that fear and tame it and move ahead. Stage fright बहुत ज़्यादा कम कर देता है आपकी. बहुत सारे schools में the schools are not engaging most of the students are not engaged in co-curricular activities like debating and MUNs, and mooting तो होती नहीं है. So you need to cross that barrier. Therefore mooting provides you with a very good stand to cross that barrier. उसमें आपको पता नहीं लगेगा. आप 3 महीने आप रिसर्च करते हो, और फिर लास्ट का 1 महीने ये डर नहीं होता है दिमाग में कि यार मैं बोल नहीं पाऊंगा. आपको ये लगता है मैंने 3 महीने रिसर्च करी है, आई नो माई सब्जेक्ट एंड आई कैन टॉक अबाउट इट. तो दैट डेवलप्स योर कॉन्फिडेंस वेरी ग्रेजुअली एंड इट हेल्प्स अ लॉट. इसके अलावा मूटिंग के बेनिफिट्स, ये तो सारे पर्सनल लेवल बेनिफिट्स हैं. इसके अलावा प्रोफेशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं. If you have a good mood on your CV, definitely you will be scoring good internships, which will definitely reflect on a good job opportunity for you after you get out of college, or even in form of a PPO. In fact, one of my friends, he scored a very, very good internship in his 3rd year from a judge he met in a moot court, because he performed very well in that moot court. So that judge got impressed. Uske baad he got a follow-up internship, and then he's working in that tier 1 firm as of now, as we speak.
तो दिस इज जस्ट वन ऑफ अ काइंड, ये सबके साथ नहीं होता है, बट यस इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों डेवलपमेंट करने का मूटिंग में मौका मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूटिंग इज the only co-curricular activity which you get to do as a law student. आपके इंजीनियरिंग वाले दोस्त डिबेट करेंगे, एमयूएन करेंगे, एमबीए वाले दोस्त सब कुछ करेंगे, बट मूटिंग, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, यू गेट टू मूट, यू ओनली गेट टू मूट। तो प्लीज गो अहेड, मूट, उसका एक बार करके देखो यू वांट टू डू और यू डोंट वांट टू डू। एंड यस, while you are picking your first moot, two things need to be taken care of. One is your team composition. इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा एंड यू विल गेट माय ग्रास्प ऑफ व्हाट आई वांट टू से। फ्रेंडशिप इज नो क्राइटेरिया टू मेक अ मूड टीम। दोस्ती करनी है, दोस्त बनाओ, ग्रुप इकट्ठा करो, चिल करने जाओ, कहीं बीच पे जाओ, पहाड़ों पे जाओ, मूड करने मत जाओ दोस्तों के साथ। अगर इफ योर फ्रेंडशिप इज द सोल क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग अ मूड टीम, रेस्ट अश्योर्ड मूड के बाद वो फ्रेंडशिप तो टूट ही जाएगी, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टिवली उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हो। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक। apart from that, know very well why you are wanting to move. क्या आपको जीतना है? Do you want to win or do you want to gain experience? Because first year, second years में दो तरीके के बच्चे होते हैं। जैसे मैं, I went for a move which I could win. So I went for GH Rai Soni. I went to the finals. I won the best demo, won the best speaker. तो ये सारा इसलिए था because I was very clear, मेरे को उस टाइम I was in NLU, तो उतना ज्यादा mooting culture develop नहीं था। All I wanted is to bring a trophy in my college, and I brought that trophy, so I want that kulala, and so I was attracted with that. But कुछ बच्चे ऐसे भी थे who went with doing William C. Wiss in their first year. उन्होंने वो जीता नहीं competition, but it developed a very strong platform for them to embark on their mooting journey आगे future में. And in their fourth year, those students which I was talking about, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में विलियम सी विस किया था, इन देयर फोर्थ ईयर दो स्टूडेंट्स वेंट अप टू जेसअप सेमीफाइनल। तो दोनों तरीके हैं। यू नीड टू फिगर आउट, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। डू यू वांट टू विन अ मूट, गो फॉर अ विनेबल मूट, टीयर 3 मूट के लिए जाओ, टीयर 2 मूट के लिए जाओ। if you want to gain experience, if you want to gain quality, which you can in your first year, you can afford to do that in your first year, second year, go for a tier 1 moot, international law moot, अच्छे मूड के लिए जाओ। एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, तो फिर आप टीम कॉम्पोजिशन अगर ऐसी है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, बाकी फोर्थ ईयर में है, एंड यू आर परफॉर्मिंग वेल, तो आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Okay, so I think we've talked enough about why should you moot. I've given you ample reasons. So now we'll be discussing these 4 pillars of a moot court competition. Any moot court competition, any moot problem, and anything related to moot is related with these 4 things. You should know how to research. You should know how to draft. You should know the skill of formatting documents, and you should be equipped with the oral argument, and your moot is done. यही 4 चीजें। ऊपर की जो 3 चीजें हैं, रिसर्च, ड्राफ्टिंग एंड फॉर्मेटिंग, दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द मेमोरियल मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ अ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। लास्ट वाला जो ओरल आर्ग्यूमेंट्स है, इट इज मेनली जब आप मेमो सबमिट कर देते हो, एज आई टोल्ड यू, आपको 3 महीने मिलते हैं ऑन एन एवरेज, आई एम स्पीकिंग ऑफ एवरेजेस है। तो 3 महीने में आप जब मेमो सबमिट करते हो, उसके बाद 1 महीना या 20 दिन आपको मिलेंगे, एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दोज ओरल आर्ग्यूमेंट्स इन दोज 20 डेज इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ओरल आर्ग्यूमेंट्स में जो लेबर लगता है, दैट इज अराउंड 20% ऑफ द एंटायर लेबर विच यू पुट इन अ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। मोस्ट ऑफ योर लेबर विल गो इनटू मेमोरियल मेकिंग, बिकॉज यू आर रिसर्चिंग। रिसर्चिंग इज सम टास्क। जब आप अच्छे से रिसर्च करोगे, एंड योर रिसर्च गोज ऑन टिल द लास्ट सेकंड, जब आपका मेमो सबमिट नहीं हुआ है, तब तक बच्चे रिसर्च करते रहते हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट एनी इशू। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द upcoming part of this webinar, we are going to discuss each of these pillars one by one, and I'm going to tell you, I've made brief pointers जिन पे मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो बच्चे मिस करते हैं, and things which should be kept in mind. I think someone is not on mute, guys. Please mute yourself, or I would not be able to speak. There would be disturbance. Please take care of it. अच्छा, ठीक है। तो these are the 4 pillars of moot. Now one by one we are going to discuss them. The first one being, अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, the first one is research. Research का जो स्किल है, it's not, research is never about if you are able to find a case law or not. ये बहुत अच्छे से समझना।
the question, the researching skill का जो question है, it is not based on whether you are finding a case law or not. Sir, just hold on for a second. I'm extremely sorry to interrupt you. Just give me Yeah, one. no problem, no problem. Guys, I think every one of you is not on mute. Please help us and mute yourself and help everyone. I think we can mute them from our end also. Yeah, that's right. Yeah, I think everyone is on mute now. Yeah, it's sorted. Yes. So we were talking about research and how important equipping research के लिए. तो research में game ये है ही नहीं कि आप वो case ढूंढ पा रहे हो या नहीं. Research का game है कि आप required time में वो case law ढूंढ पा रहे हो या नहीं. If at all, one of my engineer friends, I'll give him some facts and then tell him कि भाई ये facts हैं और मेरे को इस पे कोई case law कोई law ढूंढ के बता दे. I'm sure वो ढूंढ देगा, बस उसको 10 दिन 12 दिन लग जाएंगे वो ढूंढने में. गेम रिसर्च का ये है, जब आपके पास रिसर्च कोई आया है, टास्क रिसर्च टास्क आया, आप कितना जल्दी रिसर्च कर पाते हो. और जितना ज्यादा आप रिसर्च टूल्स, रिसर्च सोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन, जितना ज्यादा आप फ्रेंडली होगे उन सोर्सेज से, जितना ज्यादा मैप रोड मैप क्लियर होगा रिसर्च सोर्सेज आपके दिमाग में, उतना एफिशिएंटली आप रिसर्च कर पाओ. लॉ फर्म्स में, आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू हैज इंटर्न्ड इन अ लॉ फर्म में गेम ही टाइम का है. इनफैक्ट लिटिगेशन में भी टाइम का गेम है, बट लॉ फर्म में यू गेट टू फील दैट प्रेशर एवरी डे यू गो व्हेन यू गो एन इंटर्न ऑल्सो. I remember I realized this thing in my third year when I sort of had a distance from law firm wala culture, so and I went for litigation. So usme I was interning in Karanjawala, and the only task how they give you the task is they will come to you or they'll call you to themselves, और फिर वो अपने ऑफिस में तुम्हें बुला के फैक्ट प्रोपोजिशन देंगे and they'll tell you कि आधे घंटे में इसका एक ब्रीफ तैयार करके दे दो. तो उस आधे घंटे में you need to understand the facts, you need to research, find authorities, make a draft, format it and submit it. तो रिसर्च सब कर लेंगे, बट उस 10 मिनट में वो केस ढूंढना, वो अथॉरिटी ढूंढना और अपने सीनियर को देना, डांट से बचने के लिए, और टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, दैट इज व्हाट यू कॉल अ स्किलफुल रिसर्च. अच्छा, तो द पर्पस ऑफ एनी रिसर्च इज, फॉर मूड कोर्ट, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज बैकिंग अप योर आर्ग्यूमेंट. सो वंस वी talk about backing up our arguments, we should know the value of the source with which we are backing up our argument. कहीं से कोई केस लॉ अगर हम ढूंढ के लाते हैं, कहीं से कोई बुक ढूंढ के लाते हैं रिसर्च में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो बुक है या फिर वो केस लॉ है, उस सोर्स को कैटेगराइज कैसे करें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. प्लीज ये अगर लिखना चाहो तो लिख लेना. मेक वेरी ब्रीफ जस्ट कीवर्ड नोट्स. तो जो सोर्सेज है रिसर्च के, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. पहला हमारा हो जाता है प्राइमरी सोर्सेज and the second is secondary sources. Primary sources, this categorization is on the basis of origin, कि कोई रिसर्च का सोर्स आया कहां से है. तो 2 तरीके से आता है, या तो प्राइमरी सोर्स होगा. प्राइमरी सोर्स मतलब लॉ का प्राइमरी सोर्स वो होगा जो लॉ बनाने वालों ने हमें डायरेक्टली दिया है. लॉ कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी. गवर्नमेंट के कितने पिलर्स होते हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या करता है? पार्लियामेंट में लॉज पास करता है. स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास करती है. क्या स्लाइड शो ऑफ हो गया क्या? यस, इट्स रनिंग. हाँ, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में क्या कौन आ जाएगा? एग्जीक्यूटिव में आ जाएगी हमारी मिनिस्ट्रीज जो ऑर्डिनेंस पास कर, मिनिस्ट्रीज जो नोटिफिकेशन पास करती हैं, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर कोई नोटिस निकालता है, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. आप ऐसे प्राइमरी सोर्स नहीं देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो प्राइमरी सोर्स है, या फिर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है वो प्राइमरी सोर्स है. तो एक शहर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कोई नोटिफिकेशन कैसे प्राइमरी सोर्स हो सकता है? इट डज नॉट मैटर. इफ द अथॉरिटी कंसर्न्ड इज हैविंग द ऑफिशियल स्टेटस, अगर वो स्टेट है, तो वो जो लॉ बना रहा है, और लॉ की हमारी जो डेफिनेशन है उसमें रूल, नोटिस, नोटिफिकेशन, बाय लॉ, ये सारी जो चीजें, अगर इनमें से कोई भी चीज स्टेट ने निकाली है
दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. ठीक है. लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जुडिशरी हमारे जजमेंट पास करती है, दे आर प्राइमरी सोर्स. एग्जीक्यूटिव कोई नोटिफिकेशन निकालता है, दे आर ऑल्सो प्राइमरी सोर्स. नाउ second categorization is on the basis of value of the source. Value being either the source could be binding or the source could be merely persuasive. Binding मतलब कि अगर आपने वो अथॉरिटी साइट करके बेंच मतलब जो जज बैठे हैं आपके सामने, अगर आपने बेंच के सामने कोई अथॉरिटी साइट करी एंड यू मेक एन आर्ग्यूमेंट इन फर्दरेंस विद दैट अथॉरिटी और साइटिंग दैट अथॉरिटी, द जज नीड्स टू मैंडेटरली फॉलो दैट अथॉरिटी. क्योंकि प्रेसिडेंट करके एक चीज होती है, कॉमन लॉ सिस्टम्स में हम प्रेसिडेंट फॉलो करते हैं. प्रेसिडेंट मतलब कोई पुराना अगर केस लॉ है, उसी बेंच पे वो बाइंडिंग होगा. यू कैन नॉट चेंज द ट्रैक ऑफ लॉ जस्ट बाय डिलीनिएटिंग इट. तो अगर आपको रीजन कोजेंट रीजन है आपके पास तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो द प्रेसिडेंट. ओके, तो बाइंडिंग सोर्सेज हमने क्लियर कर लिए. इसके अलावा होते हैं परसुएसिव सोर्सेज. और एक मिस्टेक जो सब बच्चे करते हैं, डोंट डू दैट. मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड प्राइमरी सोर्सेज एज बाइंडिंग पर से, कि प्राइमरी है तो बाइंडिंग होगा ही, बट दैट्स नॉट ट्रू इन एंटायरिटी. सच है ये बात, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बस 2 मिनट में. तो प्राइमरी सोर्स बाइंडिंग सोर्सेज मैंने बता दिया आप लोगों को. प्राइम और परसुएसिव सोर्सेज होते हैं कोई भी सोर्स जो सेकेंडरी हो. ऑलराइट, अब यहाँ पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी और बाइंडिंग और परसुएसिव को कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये अंडरस्टैंड, इसको समझना कैसे कर रहा हूं मैं. जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, दे विल ऑल बी persuasive. No secondary source of law will ever be binding on any bench, any court of law. It is a rule. No secondary source. Secondary sources में हमारा आता है books, encyclopedias, articles. Even if the book is written by a sitting Supreme Court judge, जब तक वो जज के पोजीशन से नहीं लिख रहा है, if he is not writing a judgment, that's not qualified to be a binding source. So secondary sources are always persuasive. But primary sources can be either persuasive or binding. जैसे कि अगर इंडिया में हम हैं और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस निकाला है, तो दैट विल बी बाइंडिंग, दैट विल बी अ प्राइमरी सोर्स, क्योंकि गवर्नमेंटल अथॉरिटी से कोई सोर्स आया है. बाइंडिंग तो होगा, सॉरी प्राइमरी तो होगा, साथ ही साथ बाइंडिंग भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में. लेकिन अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट निकाल देता है, या फिर यूएस का सेनेट कोई अगर लॉ पास करता है, तो उसको जब हम इंडिया में देखेंगे तो वी विल स्टिल कॉल इट अ प्राइमरी सोर्स, बिकॉज उसका जो ओरिजिन है दैट इज स्टिल ऑफिशियल, बीट सम अदर कंट्री, बीट सम अदर ज्यूरिसडिक्शन, बट इट इज स्टिल अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ. क्योंकि उसके जुडिशरी ने या फिर उसके लेजिस्लेचर ने ही वो पास किया, दैट इज प्राइमरी. बट इंडिया विल नेवर फॉल इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूएस, तो इंडिया में वो बाइंडिंग नहीं होगा. Therefore, secondary is always persuasive. Primary can either be persuasive or be binding, depending on the jurisdiction. This is what you should understand mostly. ये clarity होनी चाहिए when you research. Okay. Now, research पे एक last बात. अगर ये this is a research methodology हम इसे बोल लेते हैं. एंड अगर आपने कभी बहुत ज्यादा डाउट, जैसे मुझे पर्सनली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये डाउट होता था कि अगर कुछ मिला है तो रिसर्च क्या होता, क्या है रिसर्च, कहाँ से करूँ, किससे पूछूं, क्या गूगल पे क्या लिख दूं मैं जो रिसर्च हो जाए मेरी. तो इतना पैनिक करना ही नहीं है. आपके पास फैक्ट्स आते हैं, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट द क्वेश्चन. उन फैक्ट्स से डिस्प्यूट ढूंढो कि ये अगर जो पार्टियां हैं ये लड़ क्यों रही हैं यार. जैसे ही आपको डिस्प्यूट मिला, आपको इशू मिल जाएगा. एंड वंस यू गेट द इशू, यू कैन बिगिन योर रिसर्च. ठीक है. रिसर्च का मेथड कुछ भी गूगल पे नहीं लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको राइट टू लाइफ पे सर्च करना है, तो यू विल बिगिन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, बट योर पर्पज ऑफ रिसर्च विल बी टू एंड अप एट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ही बाइंडिंग होगा. मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर इंडिया का है और इंडिया की हम बात कर रहे हैं, अब हम इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में ही बात करेंगे, तो वी विल अज्यूम दैट प्राइमरी सोर्सेज आर बाइंडिंग. तो हमारा पर्पज होता है रिसर्च का कि हम सेकेंडरी सोर्स को ही उठाएं और उस सेकेंडरी सोर्स से हम प्राइमरी सोर्स तक जाएं, बिकॉज दैट प्राइमरी सोर्स विल बी बाइंडिंग ऑन द बेंच जिसके सामने मैं मूड कोर्ट अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने वाला हूं. हाउ दिस हैपेंस,
आपको राइट टू लाइफ पे रिसर्च करना है। राइट टू लाइफ के भी मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 21 के भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल राइट टू स्लीप, लेट्स से राइट टू स्लीप पे डिस्कस अगर तुम्हें डिस्कस करना है, आर्ग्यू करना है, तुम आर्टिकल 21 सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी बुक सबसे पहले आप खोलोगे? डीडी बसु खोलोगे। एवरी टाइम यू हंट फॉर अ कमेंट्री व्हेन यू आर हंटिंग फॉर अ सेकेंडरी सोर्स, या फिर कोई वेबसाइट पे आपको आर्टिकल 21 राइट टू स्लीप के बारे में आप पढ़ने लगे, सम ऑथेंटिक वेबसाइट और सम आर्टिकल, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। देखो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ये सब कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है। तो यू हंट फॉर अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ जहां पर राइट टू स्लीप आर्टिकल 21 की बात की गई है। From that secondary source, now one more important thing about secondary sources is every secondary source of law is a compilation of primary source, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स खुद से तो कभी लॉ बता ही नहीं सकता। जो प्राइमरी सोर्स ने लॉ बताया है, सेकेंडरी सोर्स उसी पे एलैबोरेट करेगा, उसी को इंटरप्रेट करेगा, उसी को कंपाइल करेगा, जो भी करना है वो प्राइमरी सोर्स से ही करेगा। तो अगर आपको सेकेंडरी सोर्स में आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू स्लीप के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलता है, 110% उस बुक में, उस कमेंट्री में, वो जो इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है राइट टू स्लीप की, उसमें कोई केस लॉ भी लिखा होगा कि वो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस लॉ में दी है या फिर हाई कोर्ट ने किस केस लॉ में दी है। यू गो टू दैट केस। या फिर कोई बुक अगर आपके पास है, बुक में नेवर, एक जस्ट होल्ड ऑन, आई शो यू समथिंग। ये फॉर एग्जांपल दिस इज एमपी जैन, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग वाला पेजेस होते हैं, these pages you see them, ये सारे होते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। लेकिन जब आप मूव करोगे या फिर जब आप एक्सटेंसिवली रिसर्च करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट से बहुत ज्यादा फायदा करता है ये जो लास्ट बुक के जो लास्ट में ये पेजेस होते हैं, ये इसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग, ठीक है। ये जितनी भी कमेंट्रीज होंगी तुम्हारी, मोटी मोटी कमेंट्रीज, उन सब की छोटी छोटी हेडिंग्स भी, फॉर एग्जाम्पल राइट टू स्लीप की इस 2000 पेजेस की बुक में राइट टू स्लीप की बात 10 अलग अलग पेजेस में करी गई है। तो आप जब बुक को पीछे से खोलोगे, उसमें राइट टू स्लीप पे जाओगे, देन यू विल फाइंड ऑल दोस पेज नंबर्स कंपाइल्ड इन अ सिंगल प्लेस जहां पर राइट टू स्लीप की बात किया गया है, एंड हाउ एवर राइट टू स्लीप हैज बीन एवर इंटरप्रेटेड, और जहां पे भी जितना भी लॉ है इस बुक में, यू विल बी एबल टू हंट दैट डाउन। और उन 10 पेजेस में से, जिन 10 पेजेस में राइट टू स्लीप की बात करी गई है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। अभी भी आपका रिसर्च खत्म नहीं हुआ है। नाउ यू नीड टू गो टू दैट प्राइमरी सोर्स। यू नीड, फॉर एग्जांपल इट्स अ सुप्रीम कोर्ट केस लॉ जो आपको हेल्प कर रहा है जिसका इंटरप्रिटेशन, यू नीड टू बी श्योर दैट द फैक्ट्स ऑफ दैट केस आर समहाउ सिमिलर टू द फैक्ट्स ऑफ योर केस। बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट में आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। So if you get that case, your first round of research is done. You have a primary source. You can now build your argument. You can cite that authority, and you have a well-structured argument for an issue कि right to sleep वाला issue आपका solve हो जाएगा। So this is how you get to a primary authority. Secondary sources से ही चालू करो, वहाँ पे कुछ ना कुछ interpretation मिलेगा, primary source मिलेगा, primary source उठाओ, cite करो, उसको verify करो और उसको cite कर दो। And yes, research का इकलौता जो मास्टर है, बादशाह है रिसर्च का, वो है गूगल। तो गूगल में एक चीज लिख लो आप लोग, सिंटैक्स सर्च होता है गूगल में, कीवर्ड सर्चेस होते हैं, अलग अलग टूल से हम सर्च करते हैं। इफ यू आर इक्विप्ड विद दैट सर्च, तो आप बहुत सारे रिसर्च आपका बिल्कुल बहुत कम टाइम में हो जाता है, इफ यू नो हाउ टू यूज गूगल। कभी कभी ये भी हुआ है, मैं जब मूव कर रहा था, मुझे स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में रिजल्ट नहीं मिले हैं गूगल पे भी, एंड वी यूज टू गो डाउन टू द 10th पेज, डीपेस्ट पेजेस मतलब जो थे गूगल के, हम 10 से 11वें पेज तक जाते थे एंड यूज टू फाइंड समथिंग। तो यस, अगर कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आपको अथॉरिटीज नहीं मिल रही है, तो गूगल को पूरा ढूंढ लो अच्छे से, गूगल पे बहुत कुछ मिलेगा। एंड गूगल स्कॉलर इज वन ऑफ अ गुड सोर्स जहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो। गूगल स्कॉलर, दैट्स फ्री ऑल्सो। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज इनफ अबाउट रिसर्च। आपको मैंने काफी बता दिया रिसर्च पे। गूगल का सिंटैक्स सर्च जरूर ट्राई करना, और इन ऑनलाइन जेस्टोर ये सब, तो वील टॉक मोर अबाउट दैट इन फ्यूचर। नाउ ओके, लेट्स कम टू द ड्राफ्टिंग पार्ट। ड्राफ्टिंग बेसिकली, आपने रिसर्च कर लिया, आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल गए, नाउ यू नीड टू पुट दोज आर्ग्यूमेंट्स इन अ फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज इन योर डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड अ मेमोरियल, जो आप सबमिट करोगे बेंच को। इट्स अ वेरी फनी थिंग, बट फर्स्ट ईयर में हम सबको ये लगता है, व्हेन वी आर वेरी यंग
to mooting, we have this common misconception that using a complex language will be very impressive. It will lay down a very good impression on the judge. And Latin maxims is even better. Latin maxims तो भर दो document projects में तो Latin maxim बच्चे ऐसे use करते हैं, exploit करते हैं बच्चे. But that should not be done. As a rule, you need to realize कि जितना simple होगा आपका draft, उतना ही ज़्यादा appealing होगा, उतना ही ज़्यादा impactful होगा. So you need to shift yourself towards, equip yourself towards knowing how to use simple language. And by simple language I do not mean childlike language. तुम अपने ड्राफ्ट में ये नहीं लिख सकते हो कि आर्टिकल 21 इज अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक, ऐसे नहीं. ये इसका मतलब नहीं है सिंपल का मतलब कि आप हैप्पी को हैप्पी लिखो, एक्सटैटिक मत लिख दो. दिस इज व्हाट आई मीन बाय सिंपल. सब कुछ लोग वर्ड पे थिसॉरस को एक्सप्लॉइट करते हैं. डोंट डू दैट. व्हेन आई एम रीडिंग इट, इवन आई डोंट नो दोस वर्ड्स, so much of words जो थिसॉरस ने आपको बताए हैं और आपको भी वो नहीं पता थे बट आपने लिख दिए हैं. Try to use those words जो कि common knowledge में हो, common parlance में हो. Don't use long sentences, बहुत ज़्यादा लंबे sentences. Many students have this habit of putting and in between of sentences, and their sentences from 2 lines they go to 3 lines, 4 lines, 5 lines. इतने लंबे sentences भी देखे हैं मैंने memorials में. Stop using and. Don't abuse and मतलब. Okay. So you don't have to use very flowery language. You don't have to use Latin maxims in order to impress the judge. You need to keep your draft as simple as possible. We are going to discuss how you can maintain the simplicity and consistency in order to make your draft look more impactful. Okay. Yes, this point is very important actually. You need to pick out drafting styles from the best memorials जो पिछली साल जीते हैं, है ना, या फिर जैसा उठा लो, कोई इंडिया का बढ़िया इंटरनेशनल, इंडिया का कोई मूड का कोई बेस्ट मेमो उठा लो, एंड यू नीड टू एनालाइज कि वो बच्चों ने कैसे ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी करी कि उनको बेस्ट मेमो मिल गया. या फिर जो विनर्स हैं उनकी ड्राफ्टिंग देखो. समझ में नहीं आता है व्हेन यू आर न्यू टू लॉ स्कूल, यू हैव नो क्लू. बिलीव मी गाइस, आई हैव बीन देयर. यू हैव नो क्लू हाउ टू ड्राफ्ट एन आर्ग्यूमेंट. आप बिल्कुल बेसिक रॉ इंग्लिश लिखते हो. जितना डिफरेंस एक डिबेट और एक मूड में है, उससे भी कहीं ज्यादा डिफरेंस एक नॉर्मल राइटिंग और एक ऑफिशियल ड्राफ्ट राइटिंग जो लिखा जाता है मेमो के लिए उसमें है. तो यू नीड टू नो कि कैसे एक ड्राफ्ट प्रोसीड करता है. उसका सबसे तो बेस्ट मेमोज तो आपको देखने ही है. एक और चीज होती है बेस्ट मेमो. व्हेन यू लुक एट बेस्ट मेमोरियल्स, तो योर ड्राफ्ट बिकम कंसिस्टेंट. अंडरस्टैंड दिस. एक मूड में 3 लोग होते हैं, ठीक है. तीनों लोग रिसर्च कर रहे हैं 3 इशू पे और तीनों लोग अपना आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं हाइपोथेटिकली. एक बच्चा अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे बिगिन कर रहा है, इट इज सबमिटेड. दूसरा जो बच्चा है उसको ड्राफ्टिंग स्टाइल, उसको हो सकता है वो इट इज सबमिटेड यूज ही ना कर रहा हो सकता है वो डायरेक्टली लिख रहा हो, सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस स्टेट्स दैट. और कोई बच्चा है जो लिख रहा हो वी आर सबमिटिंग दैट. तो ये सारी इनकंसिस्टेंसी जो है वो जज को पकड़ में आ जाती है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज you three need to fixate upon one memorial, और उस मेमो में जैसे ड्राफ्टिंग की गई है, यू नीड टू स्टिक ऑन दैट. ठीक है. yes, one more thing, when you look at best memorials, you'll gain a lot of expertise on how to make memorials. मैंने and Anant, my co-founder at Memo Pandit, we made so many memorials and we've looked at so many memo in our 3rd year and 4th year that so one important thing which I noted, which I learned, I still remember this, कि मैंने एक पता नहीं कौन सा मेमो देखा था, उससे मैंने सीखा था. स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ड्राफ्ट करते टाइम you need to be careful. It is always the petitioner or the appellant or whichever is the aggrieved party which approaches the court. लेकिन कई सारे मेमोरियल्स में आपको रिस्पोंडेंट के मेमोरियल्स होंगे और उनमें स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज ड्राफ्टेड लाइक दिस: the respondent approaches the court under section 9 of CPC. That's not how it's done. The respondent has 2 options. Either he can submit to the jurisdiction of the court. तो आप अप्रोच नहीं करते हो, अप्रोच तो किसी और ने किया है कोर्ट को, फिर कोर्ट को लगा कि हाँ भाई ये जो बंदा है इसको दिक्कत हुई है, तो कोर्ट ने आपको बुलाया कि भाई तुम आओ इसका बात का जवाब दो. That's how you become the respondent. So either you submit to the jurisdiction of the court,
और यू कंटेस्ट द jurisdiction. तो कंटेस्ट कैसे करते हैं? आप ऊपर पहली लाइन आप लिखोगे, द अपीलेंट्स हैव अप्रोच्ड दिस कोर्ट अंडर सेक्शन 9. However, the respondents contest the jurisdiction of the appellant. बस सिंपली. और इतना अच्छा लगता है कि रिस्पोंडेंट का jurisdiction का क्लेम मतलब कितना अच्छे से लिखा हुआ है, कितना अच्छे से ड्राफ्टेड है. That's what you pick out from other best memorials. Okay, that's done. One another. Now this is a tip. Up. This is how you are going to draft. इसको बहुत जल्दी जल्दी सुनना. We are a bit short on time. We will extend it अगर जरूरत पड़ती है if you are interested. This tip is I hope you, I really hope that you know this, है ना. और मेरा ये बताना बिल्कुल बेकार हो, बट इंडियन लॉ स्कूल्स में इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं इस पे. मुझे लगता है दिस शुड बी टॉट इन क्लासरूम्स एज अ रेगुलर कोर्स ड्राफ्टिंग पे. This is called ILAC or IRAC. This is the method of drafting which you use to draft anything, not only moot court memorials. You can draft your exam answers, you can draft your project, because it makes perfect sense to write like this. First of all, it's the issue. ILAC, ILAC होता है, या फिर IRAC भी बोलते हैं. issue, I से issue हो गया, R से rule हो गया, या फिर L से law हो गया. ILA से हो गया argument, ILAC, C से हो गया conclusion. एग्जाम्पल तो मैं क्या दूं? राइट टू स्लीप पे चलते हैं वापस. राइट टू स्लीप पे हमने बात करी थी. राइट टू स्लीप आर्टिकल 21 में आता है. अब अगर कोई मूड प्रोपोजिशन राइट टू, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये घर है, बगल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुछ बनवाने लगता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनवाने लगता है और रात रात भर अगर वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर, मैं सो नहीं पा रहा हूँ अपने घर पे, तो अब मेरा स्टेट के साथ डिस्प्यूट हो गया. ठीक है, मेरे पास लॉ क्या है? मेरे पास लॉ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मकबूल अली वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ये बोला हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल हैव अ फंडामेंटल राइट टू स्लीप अंडर आर्टिकल 21. दिस इज व्हाट आई हैव. नाउ आई विल अप्रोच द कोर्ट. I'll present this issue कि भाई मेरा मेन इशू ये है, whether or not my right to sleep has been encroached by state. ये हो गया हमारा इशू. अब इस इशू पे हम एक सपोज हम एक ड्राफ्ट पूरा बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, एक ये वेदर और नॉट फंडामेंटल राइट ऑफ स्लीप अंडर आर्टिकल 21 हैज बीन ब्रीच्ड, ये इशू हो गया. दैट्स इट, आई इज डन. अब आते हैं एल पे, लॉ पे. इशू लिखते ही आप लॉ स्टार्ट कर दो. आपको इधर उधर समझाना ही नहीं है कुछ कि फंडामेंटल राइट टू स्लीप क्या होता है. नहीं, कुछ समझाना नहीं है. यू जस्ट नीड टू पुट एवरीथिंग डाउन इन योर मेमोरियल ताकि आप आर्ग्यू कर पाओ उसको. आपने अपने मेमो में सबसे पहली लाइन लिखी, एंड इट इज सबमिटेड that the Supreme Court in the case of Maqbool Ali, I think Maqbool Ali or Ghulam Ali, I'm not sure, I think it's Maqbool Ali, in the case of Maqbool Ali versus state of MP, opined that every citizen of India will be having a right to sleep under fundamental right to sleep under article 21 of the Constitution of India. You stated the law. और ये लॉ, अच्छा ये जो इशू के बाद जो लॉ लिखोगे, ये तो आपके पास, ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट केस ही बता रहा हूँ आपको. अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट केस नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ प्राइमरी सोर्स, इफ यू डोंट हैव अ बाइंडिंग सोर्स, गो विद सेकेंडरी सोर्स. जो भी सोर्स है उसको यहाँ पे जस्ट पुट इट डाउन. ओके, आपने लॉ लिख दिया, इशू लिख दिया. अब आप उसको ये बता रहे हो कि भाई ये कानून है और मेरे जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं. मेरा घर यहाँ पे, मेरे घर के बगल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा है जिसका रात भर मशीन चलता है एंड मैं सो नहीं पा रहा हूँ. These are your facts. Now you just write your facts and you corroborate them with the law concerned. जो आपने ऊपर लॉ लिखा था, ये आपका आर्ग्यूमेंट बन जाता है. ठीक है, आपने लॉ बता दिया. उसके लॉ के जस्ट नीचे अब आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है. These are the facts and law is stated as above. Once you state this argument and explain it to argument सबसे detailed part होता है ILAC का. Once the argument is done, you just put forth your conclusion. Therefore, in the light of ऊपर वाला जो भी facts and law, my fundamental right of sleep has been breached by the state of Uttar Pradesh. Just put the conclusion. इससे क्या होगा? आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेमोरियल्स में. स्टूडेंट्स ड्राफ्ट लॉन्ग लेंदी पैराग्राफ. दैट्स अ कंप्लीट टर्न ऑफ फॉर द जज. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने का भी मन नहीं करता है वो पेज को जिसमें 15-15 लाइन के पैराग्राफ होते हैं. मेक श्योर दैट योर paragraph is drafted in not more than 8 or 9 lines. That's the limit. We personally recommend 7 or 8 lines, but हद से ज़्यादा आप 8-9 लाइन से ज़्यादा अपना पैराग्राफ मत एक्सटेंड करना. And you can secure the short length of the paragraph by using ILAC method.
So go, just practice it, keep practicing it, not only in your mood courts but also in your exam answers, project, हर जगह पे. वहाँ पे बस issue नहीं लिखना होगा, but practice it. Okay, someone just shouted. Please keep yourself on mute, guys. Okay, I think this is the last part जो मैं बताना चाहता था. लॉन्ग पैराग्राफ अवॉइड करो. अगर कोई भी ऐसा इशू है जिसमें आपका पैराग्राफ बहुत लंबा हो रहा है, आपको लग रहा है मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, इतना सारा केस लॉ, इतनी सारी रिसर्च है, मैं ये बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये सब लिख दूंगा, तो बस इतना एहसान करो उस जज के ऊपर कि उसको एक पैराग्राफ में लिखने की जगह ना 2 सब इश्यूज में डिवाइड कर दो. तो यू विल हैव अ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इशू डिविजन. तो वो जो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिसर्च दिखता है ऑन द आउटसेट, दैट लुक्स वेरी इंप्रेसिव एंड दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि आपने उसमें ऑब्वियसली एक फ्लो में नहीं लिखा हुआ है सब कुछ. ओके, सो कीप dividing your lengthy arguments into sub issues and sub issues. All right, now we'll come to formatting. There is not much to discuss about formatting. It's just how well you use MS Word. One very important trick which you need to know about formatting, which I realized in my third year. The best way to format a memorial is to look out for the best memorials. For example, I'm going for an XYZ moot. I will definitely hunt out for the बेस्ट मेमोरियल्स जो उस मूट ने पिछले साल या पिछले के पिछले साल, पिछले 2-3 साल में जो बेस्ट मेमोरियल जीता है, वो जीते हैं उस मूट में, मैं वो सारे बेस्ट मेमोरियल डाउनलोड करूंगा. उनमें जैसी भी फॉर्मेटिंग हुई है मैं वैसी ही फॉर्मेटिंग अपने मेमो में करूंगा, क्योंकि जो कॉलेज वो मूट करवा रहा है, दैट कॉलेज हैज अ मूट सोसाइटी जहां पे जज किए जा रहे हैं, और वो मूट सोसाइटी एक तरीके से काम करती है. उस मूट सोसाइटी में जो बंदे हैं वो बदलते रहेंगे, बट द ट्रेंड रिमेन्स. कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनको बहुत हैवी फॉर्मेटिंग पसंद होती है, इसमें लाइंस हैं, बॉर्डर्स हैं, ऊपर नीचे बॉर्डर है, 3 पॉइंट्स का बॉर्डर है, अंडरलाइंड है, स्मॉल कैप्स है, बोल्ड है. Jessup, on the other hand, good moods, very prestigious, reputed moods, they do not prefer such kind of formatting. उनको बिल्कुल light formatting चाहिए. All they focus on is the quality of your research. So when you look out for the past best memorials, you will come to know, should I focus more on formatting or should I focus more time on researching? तो quality of arguments ज्यादा अच्छा होना चाहिए या फिर मेरा मेमो दिखना बहुत अच्छा चाहिए? This you need to know by looking at the past best memorials. Now, formatting के marks कैसे मिलते हैं ये भी समझो. For example, 100 नंबर का मेमो मार्क होना है, उसमें 20 मार्क्स हैं फॉर्मेटिंग के. So these 20 marks will be awarded to you by default unless you go and mess it up. अगर आपका मेमो में एक भी फॉर्मेटिंग की गलती नहीं, they'll mention you the rule sheet. Make sure उसमें रूल्स में कई सारी चीजें होती है. पूरे बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए अलग फॉन्ट लाइन स्पेसिंग होगा, टेबल ऑफ फुटनोट्स के लिए लाइन स्पेसिंग अलग होगा, फॉन्ट साइज अलग होगा, हेडर फुटर के लिए लाइन स्पेसिंग अलग होगा, फॉन्ट साइज अलग होगा. मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर दैट एंटायर लाइन स्पेसिंग और वाली चीज इन अ शॉर्ट शीट ऑफ पेपर, और उसको अपने सामने लैपटॉप के सामने जो दीवार है ना उस पर रख लो. और when you are proofreading your memorial, उसको स्क्रॉल करते करते धीरे धीरे जब भी प्रूफ रीडिंग करो, जूम इट टू 200%, ताकि जो भी फॉर्मेटिंग एरर्स हैं, ये सारी ट्रिक्स हैं, ये आप जूम प्रूफ रीडिंग करते टाइम आप उसी 100% जूम में देखते रहते हो. जूम इट टू 200% ताकि फुटनोट एरिया जो है वो अच्छे से दिखने लगे एंड द फॉर्मेटिंग एरर्स आर विजिबल. ओके, सो यस, अनदर थिंग अबाउट फॉर्मेटिंग, योर मेमोरियल is actually the first impression on the judge. ठीक है, आप मिस इंडिया हो, आप मिस यूनिवर्स हो, आपकी शक्ल से पहले जज आपका मेमोरियल देखेगा, एंड यू डोंट वांट योर फर्स्ट इंप्रेशन टू बी बैड. तो एंड व्हेन आई पर्सनली लुक एट अ मेमोरियल जिसमें फॉर्मेटिंग भी अच्छी नहीं है, फॉर्मेटिंग इज द बेयर मिनिमम विच यू, मैं बोल रहा हूँ ना, फॉर्मेटिंग के मार्क्स आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, जब तक कि आप गलती करके कटवाते नहीं हो मार्क्स. तो इफ आई लुक एट अ फॉर्मेटिंग मिस्टेक, अगर कोई कवर पेज भी ग्लिच मिल जाता है, इट्स अ टर्न ऑफ. फिर मतलब मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, प्रूफ रीड नहीं किया गया है ये मेमो, द जज गेट्स टू नो. यू डोंट वांट द जज टू नो दैट. ओके, एंड आई थिंक दिस इज इट ऑन फॉर्मेटिंग. यस, 2 more things. फर्स्ट ऑफ ऑल इज शॉर्टकट्स. मैं जब मेमो 4th ईयर 5th ईयर में जब मेमोज बनाता था, तो जो मेमो मुझे बनाने में 24 घंटे तक लगते थे, 2 दिन 3 दिन लगते थे, वो मेमो में 2-3 घंटे में बनने लगा था, जस्ट बिकॉज मैंने माउस यूज करना बंद कर दिया था. आई वॉज ओनली वर्किंग ऑन माई कीबोर्ड. सारा शॉर्टकट मुझे इतना अच्छे से याद हो गया था, अभी भी तो मैं फिर भी भूल जाऊं काफी.
उस टाइम पे शॉर्टकट्स इतना ज्यादा हाथ पे बैठ गए थे मेरे कि मैं मेमो 3 घंटे 4 घंटे में एक मेमो प्रूफ रीड कर देता था, फॉर्मेट कर देता था, एडिट कर देता था. दिस वाज माय स्पीड एंड दैट इट वाज नॉट इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर. ये फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की बात बता रहा हूँ. तो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आर. कंट्रोल सी कंट्रोल वी के भी आगे दुनिया है शॉर्टकट्स की. आप प्लीज उसे एक्सप्लोर करें, आपके फायदे में होगा. अनदर थिंग, यस, टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज. Microsoft Word provides with you with an option जिसमें आप automated table of contents and authorities generate कर सकते हो. Table of contents generate करने के लिए आपको जितनी भी headings हैं वो सारी headings mark करनी पड़ेंगी और फिर TOC table of content अपने आप generate हो जाएगा. There is an option under review. Table of authorities generate करने के लिए you need to mark your footnotes into proper text. कि अगर ये केस है तो वो सारे केसेस में मार्क कर दिए, जितने भी बुक्स हैं वो बुक्स में मार्क कर दी. एंड देन यू टेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि डूड आई मार्क ऑल माय अथॉरिटीज, जस्ट जनरेट मी अ टेबल ऑफ द टेबल ऑफ अथॉरिटीज. और वो बाय अ सिंगल क्लिक द एंटायर टेबल विल बी जनरेटेड. नेवर एवर आई वाज स्टार्टिंग स्पीक लाइक अर्नब. Never ever generate, but that the point was that important. Never ever go for manual table of authorities or table of content. Always generate automated table of content and authority. अगर आपको ये नहीं आता है तो please go and Google it, go and YouTube it. It's not very tough and you will get to learn a new thing. Yes. और अगर वो manual है तो definitely आपके marks कटेंगे ही कटेंगे. Now, so since we are drawing towards the end of this webinar, I think it will be nice if we could ask the participants to type out any questions if they have in the chat box so that we can address it at the end. I think we have 132. अभी ज़्यादा लोग गए नहीं हैं. So guys, if we can extend it for 10-15 minutes, I'll cover this oral arguments wala slide and then you guys can ask questions. Is our chat window open right now? Yeah, chat works. Chat box If is anybody, open. if anybody has any questions, you can type it out. We'll take it up at the end. Yeah. So it will just take 15 more minutes to wind up the session. The last slide, is the slide visible? I think now it's visible. Yes. Now we are going to talk about oral arguments. इससे रिलेटेड जितना बच्चों को डर लगता है, बिलीव मी, यही एक चीज है जिसकी वजह से बच्चे मूव तक नहीं करते हैं. And this is only 20% part of the entire 20% labor of the entire process. And this oral arguments is the most enriching part of the moot court competition. सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा आप जो गेन करते हो वो डेफिनेटली मेमोरियल मेकिंग में होता है. But the competition, the moot court competition you get to witness during the oral arguments is intense. क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्टेज फ्राइट है और आपको जज के सामने बोलना है और जज क्वेश्चन पूछेगा. Another thing which is at stake is आपने 3 महीने बिना सोए मेहनत करी है, ये मेमो बनाया है एंड देन बस इस 40 मिनट के राउंड में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा. Therefore, वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स भले ही 20% है, उसकी इंपॉर्टेंस डिमिनिश नहीं होनी चाहिए. जैसे ही मेमो सबमिट हो, do not waste time. This is a rookie mistake. First year, second year में सब करते हैं. Maximum आप लोग एक दिन का break ले लो, but after that just get on with your oral preparation. मैं अभी बिल्कुल step by step आपको बताऊंगा, but what we used to do, in fact I'll tell you an example of team जो my very good friends जो semi-finals में गए थे जेसप के 2017 में. It was a very big feat for India in that mood. Those guys, they were in 5th year when they did that. वो लोग फर्स्ट ईयर के बच्चों के सामने, फर्स्ट ईयर के बच्चों की बेंच बनाते थे. फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है, उनको अभी 6 महीने 7 महीने हुए कॉलेज आए हुए. They were sitting and judging my friends जो गए थे जेसप के लिए, and just to make sure कि वो जो orally बोल रहे हैं वो इतना सिंपल हो कि वो फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी समझ में आ जाए. The knowledge should not be a divide between two people interacting. This is the main purpose of your oral arguments. अब oral arguments में भी you should not be using very flowery language, Latin maxims. जज को भी नहीं पता है, जज की आपकी एक बात समझ में नहीं आई, अगली बात से वो डिसइंटरेस्ट हो गया, आपका कुछ भी बोलते रहो. फिर जज के मन में जो घर से सोच के आएगा होगा ना क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन तो सबसे पूछूंगा ही, वो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा. You don't want that. You want him to go with your flow
and your question should be directed in that flow. You want that. That is how you tame the oral argument, not let the judge tame the oral argument का flow. Okay. जैसे ही आप प्रिपरेशन बिगिन, कोई भी ओरल राउंड्स में 2 राउंड्स होंगे बेसिकली. प्रिलिमिनरी राउंड होता है और एडवांस राउंड्स होते हैं. प्रिलिमिनरी राउंड में आपको दोनों तरफ से मोस्टली दोनों तरफ से आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा, एक बार पेटिशनर से, एक बार रेस्पोंडेंट से. एडवांस राउंड्स में यू गेट टू ड्रॉ फ्लॉट्स होता है कि आपको पेटिशनर मिल गया या रेस्पोंडेंट मिल गया. एडवांस राउंड अगर बहुत ज्यादा टीम्स आई है तो ऑक्टा फाइनल्स भी होता है, वरना फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में वो बात खत्म कर लेते हैं. ओके. ऑर्डर क्या होता है ओरल सबमिशन का? सबसे पहले पेटिशनर का जो भी अग्रीव पार्टी है उसका स्पीकर 1 जाएगा, अपना सब कुछ बोलेगा. स्पीकर 2 जाएगा, वो बोलेगा. फिर रिस्पोंडेंट का स्पीकर 1 जाएगा. फिर स्पीकर 2 जाएगा. फिर रिबटल्स होते हैं. रिबटल्स के लिए एक ही एक स्पीकर आता है दोनों तरफ से. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेयर स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इज, अगर मैं और मेरा एक दोस्त मूट कर रहे हैं, वी हैव 4 इश्यूज इन आवर मेमोरियल. आई वांट टू डील विद द फर्स्ट एंड द थर्ड इशू and my co-counsel wants to deal with the second and the fourth issue. Can you do that? This is the question. You can definitely do that, लेकिन रूल, जो पहला रूल है कि जज के लिए जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखना पड़ेगा. तो इट इज प्रेफरेबल, इनफैक्ट इट इज रेकमेंडेड कि फर्स्ट एंड सेकंड इशू शुड बी डेल्ट बाय स्पीकर 1 and the third and the fourth issue should be dealt by speaker 2. With that being said, I really hope that no one gets this from the statement कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इशू डील कर रहा हूं तो मेरे को थर्ड और फोर्थ इशू से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए. Not at all. Be prepared with the issues of your co-counsel. कभी कभी ये भी होता है कि जज आपका मेमो खोलेगा, मेरे साथ ये हुआ है, और वो प्रेयर पे चला गया सीधे, ठीक है, और उसको 3-4 प्रेयर थी, 3-4 इश्यूज थे. तो याद भी नहीं है मुझे कि उसने कौन सी प्रेयर पकड़ी थी. शायद वो दूसरे जो बंदा था, जो स्पीकर 2 था, उसकी प्रेयर थी, और उसको कुछ ऑफेंड हो गया. वो कहता है ये प्रेयर कैसे, मैं तो ये दे ही नहीं सकता, तो मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता. हाउ कुड यू प्रे दैट? मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये लॉर्डशिप, दूसरा बंदा आके आर्ग्यू करेगा आपके सामने अभी, लेकिन वो नहीं माना. एंड आई वाजंट वेरी वेल प्रिपेयर्ड. दैट वाज माय फर्स्ट स्मूथ IMCC वाला. So yes, in the end it did not end up very well. So be prepared with the issues which your co-counsel is going to deal, or if you're स्पीकर 2 तो स्पीकर 1 के इश्यूज से भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर 1 कभी कभी अपने इश्यूज कोई क्वेश्चन में फंस जाएगा, आंसर नहीं कर पाएगा. तो व्हेनेवर स्पीकर 2 गोज टू द टेबल, he or she should begin by answering the queries जो स्पीकर 1 आंसर नहीं कर पाया था. ऑलराइट, इसलिए आपको उसका पता होना चाहिए. नाउ आई विल बी टेलिंग यू व्हाट अ ट्रांसक्रिप्ट इज. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यही है ओरल आर्ग्यूमेंट्स का, यही सोल एक इंपॉर्टेंस है. ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए. जैसे कि मूट में आपका मेमोरियल इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपका ट्रांसक्रिप्ट इंपॉर्टेंट होता है. नेवर एवर रीड फ्रॉम द मेमोरियल. जज के सामने आपका मेमोरियल होगा. इफ द जज कैचेज यू रीडिंग फ्रॉम द मेमोरियल, it lays down a very very bad impression. You are not even prepared with your arguments. This is what the judge thinks about you. And so rather than reading from your memorial, you need to make a transcript. Now transcript is basically it's the backbone of your oral argument. जो पूरा आर्ग्यूमेंट का आपका स्ट्रक्चर है ना, मेमो और ट्रांसक्रिप्ट में क्या अंतर होता है ये समझो. मेमो में क्या होगा, जैसे एक इशू है, आपको 3 केस लॉ, 3 अथॉरिटीज मिल गई उस एक इशू को टैकल करने के लिए, कि भाई ये वाले केस में ये बोला गया है तो मेरे को रिलीफ दो. अगर इस वाले केस की नहीं मानते हो तो इस वाले केस में ये बोला गया है तो मेरे को रिलीफ दो. इसका मतलब आप ऑल्टरनेटली आर्ग्यू कर रहे हो. ठीक है, तो ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट्स हम मेमोरियल्स में डाल सकते हैं. But when we are arguing in front of the bench, what we need to put in the transcript is the best argument we had in our memorial. अगर 3 argument थे alternate में, उसमें से जो best argument था, you need to put that argument in your transcript because you want to argue on that. अगर वो fail हो जाता है, then you definitely need to have a backup in your transcript, but you need not argue it. You just keep it as a backup कि ये arguments पे मैं तभी reach करूंगा जब मेरा ये main argument fail हो जाएगा या फिर land नहीं कर पाएगा. Therefore, आप मेमोरियल्स में सारे आर्ग्यूमेंट्स रखोगे, बट ट्रांसक्रिप्ट में आप आर्ग्यू करने वाला जो पार्ट होगा उसमें सिर्फ अपना मेन आर्ग्यूमेंट, मेन अथॉरिटीज रखोगे. बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आप कहीं ट्रांसक्रिप्ट में ही, बट नॉट आर्ग्यूबल वाले पार्ट में, जस्ट यू नीड टू फिगर दैट आउट. ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मेमो एंड ट्रांसक्रिप्ट. यस,
हाउ टू डिजाइन अ ट्रांसक्रिप्ट. बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट, हर ट्रांसक्रिप्ट के कुछ फीचर्स होते हैं. सबसे पहले तो एवरी ट्रांसक्रिप्ट, ओरल ट्रांसक्रिप्ट नीड्स टू बिगिन विद द ग्रीटिंग व्हिच यू एक्सटेंड टू द जजेस. Then you need to put a brief intro about yourself, that you are the counsel for ye party and you're going to deal with yes, that's the later part. You need to put a brief intro about yourself. उसके बाद you need to elaborate on the time division. ये स्पीकर 1 की ट्रांसक्रिप्ट में होगा. स्पीकर 2 टाइम डिवीजन नहीं बताता है. स्पीकर 1 जरूर बताएगा. अगर आधा घंटा है तो स्पीकर 1 will tell the judge कि 20 the speaker 1 is going to take 20 minutes of your lordship's time, and my co-counsel is going to take the further 10 minutes to submit the case. This is how you tell the time division to the judge. After that you need to tell the division of issues also. आपकी ट्रांसक्रिप्ट में ये होना चाहिए कि counsel 1 will be dealing with issue 1 and issue 2 and reaching to the conclusion that the plaint is maintainable and the plaintiff's fundamental right to sleep has been breached. बस इतने में समराइज कर दो कि उसके बाद आप उसकी परमिशन लोगे. if your lordships are satisfied, the counsel would like to proceed with the pleading. तब आप जाके अपना आर्ग्यूमेंट सबमिट करोगे. उससे पहले ये सारी डेकोरेटिव लैंग्वेज जो है, ये सारे जो कस्टम्स है कोर्ट के, वो सारे आपको ट्रांसक्रिप्ट में डालने पड़ेंगे. आफ्टर टेलिंग द डिवीजन ऑफ इश्यूज यू नीड टू आस्क द जज. अगर आप प्रिलिमिनरी राउंड में हो तो डेफिनेटली जस्ट स्टार्ट विद द सिनॉप्सिस ऑफ फैक्ट. ठीक है. अगर आप एडवांस राउंड में हो तो यू कैन अज्यूम कि जज जो है वो प्रिलिमिनरी राउंड से आया है और उसको फैक्ट्स पता है, तो आप जज की परमिशन भी ले सकते हो कि अगर आपको फैक्ट्स पता है तो मैं आगे प्लीडिंग्स पे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बच जाता है वो फैक्ट्स काटने पे. बट स्टिल if we talk about the transcript, synopsis of facts needs to be there in the transcript, oral transcript also, and then there should be a roadmap of your pleadings. Pleadings मतलब जो arguments advance आपने मेमो में बनाए थे. Now these pleadings in your oral arguments should also follow ILAC format. ठीक है. आप इशू बताओगे, आप लॉ बताओगे, आर्ग्यूमेंट बताओगे, कंक्लूड कर दोगे. That's how it should be done. After that you need to conclude your submissions. आपने अगर दो इश्यूज सबमिट किए, 2 इश्यूज बताए थे उसको, जब आपका दूसरा इशू कंक्लूड हो जाए, and if you have time, which is very rare, तो just submit the conclusion कि ये लॉर्डशिप अगले को काउंसिल आने से पहले मेरे जो 2 सबमिशंस थे वो ये हैं, and now the co-counsel will be dealing with the further 2 issues. ठीक है. आप उसकी परमिशन, जज की परमिशन लेके आ जाओगे वापस. So this is how you prepare a transcript. Apart from the transcript, what you can do for oral rounds is preempt some questions. For example, one of the questions which most of the judges ask is, counsel, can you please elaborate on 5 material facts? तो पेटिशनर और रिस्पोंडेंट में मटेरियल फैक्ट्स की मटेरियलिटी को लेके बहुत डिस्प्यूट होता है कि नहीं ये वाला फैक्ट मेरे लिए जरूरी है, वो बोलेगा नहीं ये मेरे लिए जरूरी है. तो सर्टेन फैक्ट्स आर एक्चुअली मटेरियल फैक्ट्स वो होते हैं जो कि आपके मेन ब्रॉड इशू पे कोई भी रेपरकशन ले कर रहे हैं. दैट फैक्ट इज मटेरियल फैक्ट. तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद 5 मटेरियल फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई केस साइट किया है, अभी वेरी लेटली आई वाज जजिंग दिस मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, उसमें एक बच्चे ने केशवानंदा साइट किया, और आई डोंट नो व्हाई आई आस्क्ड, मैं नहीं पूछता हूँ केशवानंदा के फैक्ट्स, मैंने उससे पूछा केशवानंदा के मेरे को फैक्ट्स बताया, एंड ही डिड नॉट नो द फैक्ट्स ऑफ केशवानंदा भारती एंड ही साइटेड इट. Make sure if you're citing something in your oral argument, कोई case, you need to know the facts of that case. अगर case नहीं है, कोई article है, you need to know the author of that article, और उस author, क्योंकि article तो आप ये देखो सिर्फ persuasive है, author जितना अच्छा होगा article उतना ज्यादा persuasive है. तो you need to know the degree of persuasion जो आप bench पे ले कर सकते हो. Therefore you need to know the author of that article. सिर्फ article लिख के नहीं चलेगा, that जाते हैं बच्चे लिख के. बट अगेन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ मूड, डोंट प्रिपेयर एट अ रूकी लेवल. ट्राई टू, you'll never be an expert in first year, लेकिन ट्राई टू एटलीस्ट एम एट दैट लेवल. आप फर्स्ट ईयर में जब भी मूड करोगे ना, ऑलराइट, we'll get to that. Yes, I think this is it regarding the oral arguments. Now, one tip, if you guys are in first year, second year, if you haven't mooted, please don't be shy. Please don't be shy. Always remember, मेरा एक टीचर मेरे से ये बोलता था कि आप जब पहली बार कुछ भी करोगे तो वो गलत ही होगा. फर्स्ट ईयर में मूड करोगे तो वो गलत होगा. फोर्थ ईयर में जाके अगर पहला मूड करोगे तो भी उसमें गलतियां होंगी. तो इट्स बेटर कि जितनी भी गलतियां करनी है ना, वो इस 5 साल स्टार्ट होते ही कर लो. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितनी गलतियां करनी है कर लो.
ताकि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आप समझदार हो जाए. You don't want to commit those silly mistakes when you're in fourth year or fifth year, or when you are interning or pursuing a job. You don't want to commit those mistakes then. Commit as many mistakes as you want to. You have this time, you have the luxury of time in your first year, second year, third year. जितनी गलतियां करनी है करो, सीखो. So just go and moot. If you need any help, internet है, मैं हूँ, बहुत सारी sources हैं, बहुत कुछ है. You can avail help internet पे जितनी आपको चाहिए. But I'll really encourage you, if you have even slightest of interest towards mooting, try it once, है ना. लॉ कॉलेज के बाद सबसे कुछ जो मेमोरेबल डेज है मेरे, वो दिन है जब, और मैं कभी आई वाज नेवर अ फ्रंट बेंचर, मैं हमेशा बैक बेंचर था. मैंने पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, बट mooting was one thing which used to get me on my toes. So yes, I hope that you'll be also having a good time mooting. Now guys, we have an announcement to make, and I'd like Shaurajit to take over. Shaurajit, I think you're on mute, Shaurajit. Yeah, can we have the poster on the screen? Yeah. Yeah, so guys, we have this competition that's being organized by Memo Pandits in association with Metacept. It's a national memorial drafting competition. So it's going to be a very good experience for you if you participate. Claw is acting in the capacity as the official media partner. So you'll find all the details on our website itself. It's www.clawlegal.org. It's going to be a very interesting event. So if you, like Sir said, if you have the slightest interest, this would be a very good opportunity to sign up for drafting a memo. It's not a mood competition per se. It's just going to deal with the memo. So that being said, I think we can take up questions now. Yes. You guys can take a screenshot of this as well if you want. Yeah. We can take questions. Hold on. So I think we can proceed with the questions now. Yes, we can. Okay. So I think Bhavya has a very interesting question. She says, "Sir, can you please elaborate on how to reply to the questions asked by the judges, considering the amount of pressure at that point of time?" First of all, you need not reflect. It should not be reflected on your face that you are under pressure. The judge knows it. You are under pressure. You know it. You are under pressure. But it should not be a barrier in the conversation. Now, what needs to be done? First of all, you need to appreciate the question. Your lordship's concern is very much appreciated. And if you want to disagree with that, disagree very politely. But the council would like to politely disagree with that. Or फिर अपना जो भी submission है, you can put forth that submission. Never be disrespectful. Again, मैं अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखता हूँ. मेरे को first year में what my co-counsel did, उसने एक बहुत generic statement cite कर दिया था. And I'll stop the screen share. अच्छा, उसने बहुत generic statement cite किया था that Article 21 में right to life है, इस तरीके का कुछ statement. जज ने, और वो उसने साइट नहीं किया फुटनोट में, अथॉरिटी वाज नॉट गिवन. तो जज आज कि ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, ये कहाँ दिया है? तो वो कंफ्यूज हो गया. ठीक है, उसको लगा ये कैसा बकवास सवाल है. बट यू शुड हैव साइटेड इट कि कौन से आर्टिकल 21 किस चीज का, आईसीसीपीआर का आर्टिकल 21, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, कहाँ का आर्टिकल 21. तो वो जब 2-3 बार जज ने उससे पूछा कि आई डोंट नो व्हिच आर्टिकल 21 यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाई इज इट नॉट साइटेड, तो उसने बोल दिया दैट द काउंसिल प्रिज्यूम्स इट टू बी इन द जनरल नॉलेज ऑफ योर लॉर्डशिप. And that was the end of our round. मतलब उससे गंदा आप जज को नहीं बोल सकते हो. तो whenever the judge is asking questions, if you don't have an answer to it, you could just plead your ignorance. It is not very bad. मतलब अगर आप गलत तरीके से आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, if you're going out of your way, out of your research just to answer the question, just so that it looks good on you that you reciprocated and you did not plead ignorance, that will be a bad call. Always plead ignorance अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है. और अगर आपको ट्राई करना है, be very humble, be very polite while responding to the judge's query. Okay. Morning. Yuvraj is asking,
what if we have an opportunity to state multiple sources? Should we state the most authoritative source, or is it better to state a lot of sources, both primary and secondary? Okay, that's actually a very genuine question. बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज अगर आपको अथॉरिटी मिलती है तो क्योंकि आपका अगर 10 मिनट भी लगा है उसको रिसर्च करने में, यू ट्राई योर बेस्ट टू पुट इट इन द मेमोरियल कि मैंने रिसर्च किया है, नाउ इट शुड बी देयर। इस पे दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड नॉट पुट एवरीथिंग इन योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है? नाउ फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए आपके पास 5 अथॉरिटीज है। वन इज अ सुप्रीम कोर्ट केस, other 4 are maybe 3 are high court cases and one is DD Basu. The Supreme Court case, you will mention it in the arguments. जो argument की main body है वहां पे you can write in the case of this the Supreme Court opined this, and when you cite that, तो नीचे जब आप लिखोगे footnote area में you can write, first of all you'll write the name of the Supreme Court case, then with a semicolon you can write C also. एंड सी ऑल्सो इज एन इंडिकेटर ब्लू बुक में यूज करते हैं जो हम। सी ऑल्सो के बाद आपके पास जो बाकी की अथॉरिटीज है वो आप साइड कर सकते हो। इससे क्या हुआ? इससे आपका आर्ग्यूमेंट एडवांस वाली लेंथ भी नहीं बढ़ी फालतू के आर्ग्यूमेंट, फालतू की अथॉरिटीज से, और आपको जो एक्स्ट्रा अथॉरिटीज मिली थी यू कैन इंक्लूड देम इन योर मेमोरियल, ताकि आपका जो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज है वो बहुत लंबा बन जाए। सो दिस इज अ चीप ट्रिक, बट यस, पीपल डू दैट। What are the Sabrina is asking, sir, could you please explain the impact of a compendium in a moot court competition? Okay, yes, that's a nice question again. Compendium again, if we categorize moot preparations into levels, जो सबसे अच्छी preparation होती है, those guys definitely they always carry a compendium. Compendium, guys, is a document for those who don't know, or those who don't have a clue about what compendium is. Compendium is basically a document. Basically, what the name says, it's a compilation. It's a compilation of various documents. If you have cited, for example, there are 4 issues, you have used 4 authorities to resolve those 4 issues. तो अगर वो 4 केस लॉ जो आपने यूज किए हैं कंक्लूजन पे आने के लिए, you should have a copy of those case laws to present it to the judge. So whatever authorities you are using in your oral rounds, at least, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने मेमो में अगर 100 केसेस यूज किए, someone is not on mute, kindly put yourself on mute, guys. ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 केसेस यूज किए हैं तो you need to have a copy of all those 100 cases. No, please don't. If you are using, however, you will definitely be using at least 5 to 6 or 10 cases in your oral arguments. All the cases which you use in your oral arguments, you should have a copy of that. Now the question is, अगर कोई केशवानंदा साइट कर रहा है तो आपको पूरे 1300 पेज का जजमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर केशवानंदा के 1300 पेज के जजमेंट में आपको कोई 2 पेजेस इंपॉर्टेंट लगे हैं, यू कैन जस्ट पिक आउट दोस 2 पेजेस। केशवानंदा भारती का जो केस का मेन पेज है जहाँ पे केस की डिटेल्स लिखी है, फोटोकॉपी दैट पेज, और वो जो 2 पेज हैं उनसे पहले के 2 पेज और उनके बाद के 2 पेज, वो टोटल 5 से 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाओ। एंड compendium, every compendium should be marked with those highlighters, और वो जो paper sticks होती हैं, सारा का सारा compendium पूरा designed होना चाहिए आपका। मतलब when you take that document in a moot court, the judge को देख के लगना चाहिए yes, that guy has worked even on the compendium। और उसमें आपको आप ढूंढने नहीं लगोगे कि सर एक मिनट बता रहा हूँ केस में, सर होल्ड योर लॉर्डशिप, जस्ट लेट मी फाइंड द केस। नो, यू कैन, इट्स लाइक आप ओरल आर्ग्यूइंग कर रहे हो, शुड नॉट बी डन विदाउट द शिट। उस पे जाओ कंपेंडियम पे, और whenever you are passing the compendium to the judge, never directly pass that compendium. Directly जज को नहीं दिया जाता है। आपने कोर्ट में देखा होगा, रियल कोर्ट में एक अर्दली बैठता है, ठीक है, ऐसे ही कोर्ट में कोर्ट क्लर्क्स बैठते हैं, ठीक है। So whenever you want to pass a document to the judge, that always goes through the court clerk. तो आप कोर्ट क्लर्क को दोगे और जज को बोलोगे, your lordship, for your kind perusal, the counsel is passing this document. I hope that I was able to clarify. Chetan is saying, sir, could you please share a video on generating a table of contents and authorities? Chetan, you will find this sort of tutorial anywhere on the YouTube or on Chetan, internet in general. It must be, हाँ. It must be on YouTube, Google पे बहुत सारे steps होंगे और definitely होंगे. If I read something, so, probably a sentence from an article or a book. Wants us to explain the rebuttal round, how to go about the rebuttal.
अच्छा, Amanpreet is asking a very very good question. इस ये हमें भी फोर्थ ईयर तक ही समझ में आया था. जब फॉर एग्जांपल आपने एक बुक से कुछ पढ़ा, ठीक है, और उस बुक में एक सेंटेंस, अमनप्रीत इज आस्किंग इफ आई रीड समथिंग फ्रॉम अ बुक, अ सेंटेंस, एंड आई नीड टू यूज दैट सेंटेंस इन माय मेमोरियल, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली यूजिंग द सेम वर्ड, शुड आई साइट दैट? नो, यू आर फ्री टू नॉट साइट इट. कोई अगर कमेंट्री है तो और उसका आपने अपना उससे पढ़ के, if you are writing it in your own words, this means that you are interpreting it yourself. So आपकी खुद की interpretation need not be cited. However, if anything is copied and not cited, that is plagiarism, and that's a penalty. You could be disqualified for that. So Amanpreet, you need not cite it, but we always recommend कि आप जितना ज़्यादा cite कर सकते हो, जितने ज़्यादा sentences cite कर सकते हो, उतना ज़्यादा sentences cite करो. So if you are picking out something from a book, even if that's remotely changed, even if that's not exactly copied, you can cite the book. But if you don't cite the book, there won't be any repercussion. Sharjit, you were referring to a question, I guess. Some question. Yeah, so Himanshu was asking us to explain the rebuttal round, how to go about it. Rebuttal round, okay. Himanshu, rebuttal round में, okay. Rebuttal round basically जब respondent का speaker to बैठ जाएगा जाके, respondent ने अपनी argument submit कर दिए हैं, उसके बाद rebuttal चालू होता है. Rebuttal round पे one of the speakers from the aggrieved plaintiff वाले side will come up to the podium, come up on the table, bar table, और वहां पर वो अपना rebuttal देता है. 1 मिनट का होता है ज्यादा से ज्यादा rebuttal. There are two approaches to go for a rebuttal. Either you pinpoint 4 or 5 things जो रिस्पोंडेंट ने बोली है, और वो 4-5 चीजें आप सब एक साथ, क्योंकि 1 ही मिनट होगा आपके पास, और वो 4-5 चीजें आप लगातार जज को बोल दो जाके. और द सेकंड अप्रोच इज पिक आउट 1 or 2 मोस्ट ग्रेव इश्यूज जो आपको रिस्पोंडेंट में फ्लॉ मिला है, और उस 1 या 2 इशू पे उसको अच्छे से 30 सेकंड रिबट करो. दैट it's very personal opinion, because I think that landing on 1 or 2, rebutting on 1 or 2 issues is more impacting than, you know, एक साथ आप 5-6 अगर गलतियां बताते हो, रिबट करते हो 5-6 पॉइंट्स पे, तो इट बिकम्स मोर लाइक कि आप रिस्पोंडेंट की गलतियां दिखा रहे हो, ना कि आप रिस्पोंडेंट को बिल्कुल असॉल्ट कर रहे हो. यू नीड टू असॉल्ट द अपोजिंग पार्टी व्हेन यू रिबट. तो 1 या 2 पॉइंट उठा के उस पर अच्छे से आप रिबट कर सकते हो. And yes, judges mostly rebuttals में questions नहीं पूछते हैं. And then the respondent will come and do the star rebuttal. वो भी 1 मिनट का उसको टाइम मिलेगा. What is the difference between moot court and a real court? Sihan Ganguly is asking. Okay, we started with this question only. It's basically, there are a lot of differences, but a moot court is basically a replica. जितना ज़्यादा हम एक real court को copy कर सकते थे, to make it a co-curricular activity for law students to learn the art of drafting, researching, formatting, and arguing their case, that much we've copied. अब जब कुछ बहुत basic differences हैं. For example, जब हमें moot court की fact sheet मिलती है, कुछ fact sheets ऐसी होती हैं जिनमें the organizers tell you कि these are the facts and the parties are free to make their own issues. But real courts में ऐसा कभी नहीं होता है. Real courts में आप facts जो होते हैं वो court को submit करते हो, and judge according to his prudence विल फिगर आउट कि अच्छा हाँ ये फैक्ट्स हैं, इनमें मेरे को ये डिस्प्यूट लग रहा है इन फैक्ट्स के हिसाब से, तो मैं ये इश्यूज बनाऊंगा. जो इश्यूज बनते हैं वो हमेशा कोर्ट बनाता है. इन इश्यूज पे दोनों पार्टीज आर्ग्यू करो. इश्यूज कभी पार्टीज नहीं बनाती हैं कि ये इश्यूज पे मैं आर्ग्यू करूंगी. तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, बट ऑन द आउटसेट द एंटायर एक्सरसाइज इज सिमिलर टू, यू नो, बट एज फार एज these skills are concerned, research, drafting, formatting, or speaking, mostly same है. Mostly, I think 80% आपका स्किल वहां से आप गेन कर सकते हो. Can you cite some examples of secondary sources? Ayushi, anything which is not a primary source will be a secondary source. It can be a website, any website, even it can be a website, it can be Black's Law Dictionary is a secondary source. If a Supreme Court का judge writes a commentary, it is a secondary source. ठीक है. तो जब तक कि कोई जजमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, लॉ एज पर आर्टिकल 12,
और जजमेंट लॉ या फिर कोई एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन ऑर्डर, जब तक कि ये यही 3-4 चीजें हैं जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। इनके अलावा जितने भी सोर्सेज हैं जहां से भी आप लॉ पढ़ रहे हो, इट्स ऑल सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, इट्स नेवर बाइंडिंग। So what are the aspects we can rebut upon the arguments of the opposition or upon the memorial also? Okay. Anuja is asking कि क्या हम जब रिबटल में जाते हैं तो डू वी नीड टू रिबट ऑन द ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो उसने अगले बंदे ने बोले हैं, या फिर उसके मेमो में जो हमें रात को ही गलती मिल चुकी है, जब हमें उसका मेमो मिला था हम वो गलती रिबटल के लिए प्रिपेयर करके लाए हैं, शुड वी आर्ग्यू ऑन दैट? तो यू कैन डेफिनेटली आर्ग्यू ऑन दैट, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। क्यों? अगर आपके पास कुछ भी रिबट करने के लिए नहीं है तो गो फॉर अ रिबटल फ्रॉम द मेमोरियल। बट क्योंकि उस बंदे ने वो आर्ग्यू नहीं किया है बेंच के सामने, तो इट वुड नॉट ले अ वेरी स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन द जज। लेकिन अगर उसने कुछ आर्ग्यू किया है एंड यू असॉल्ट दैट आर्ग्यूमेंट, दैट कैन इम्पैक्ट योर मार्क्स मोर। So you can do that, but it's not advisable. So can you please distinguish between the role speaker 1 and speaker 2 in oral argument round? All right. Again, a good question. Speaker 1 basically he sets the entire temperament of the judge. की टीम कैसी है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है Speaker 1 पे. Speaker 1 will set the roadmap of the entire 30 minutes. For example, Speaker 1 2 को दोनों को 30 मिनट मिले हैं. Speaker 1 will set the roadmap कि वो 30 मिनट हमारी टीम कैसे यूज करेगी. I'll be dealing with issue 1 and issue 2 while taking 20 minutes of the court's time. However, my co-counsel will be dealing with the third issue while taking 10 minutes of the court's time. This is how you put a roadmap in front of the judge. इसके अलावा जब second speaker आता है, he also has a very specific role. If at all first speaker was not able to answer to any specific query or question of the judge, the second speaker should step up and respond to that query before beginning with his entire routine wala speech wala routine. And the second speaker पे सबसे ज्यादा important होता है prayer पे बहुत तोड़े जाते हैं counsel, मतलब prayer judges, क्योंकि जो judges आएंगे ना वो या तो lawyers होते हैं या तो judges होंगे, कहीं sitting judges होंगे या practicing lawyers होंगे. एंड प्रेयर इन रियल कोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेयर पे ही बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है, क्योंकि बात यही होती है कि मैंने जो कोर्ट से मांगा है, कोर्ट कह रहा है मैं तो ये दे ही नहीं सकता. तो दे ग्रिल अ लॉट ऑन प्रेयर. तो सेकंड स्पीकर जो है उसको प्रेयर पे काफी ज्यादा वेल वर्स्ड होना चाहिए. एंड यस, passing chits is also one thing which speaker 1 and speaker 2 should be very well versed at. आपको एकदम अगर first speaker कहीं फंस गया है तो you can pass a chit, but you need to be very discreet about it. हड़बड़ा के नहीं कि ये बता दे. Be very decent about. Let him take time. Don't worry about it. You don't need to show the judge कि हमें बिल्कुल मेरे को अभी अचानक से याद आया, मेरे को पता नहीं था लेकिन. So I researched the case whose 1 or 2 paras are similar and I want to put those paras in my memorial. Do I just copy paste those paras or write it down in my own words? First of all, Keshav, I don't think you can. If you have 2 paragraphs from a case law जो आपको support कर रहे हैं, so you should go with pasting those 2 paragraphs. If at all it's possible to summarize those 2 paragraphs in 1 paragraph, go for it. Then you can quote it. If you are quoting a judgment, you can quote 4 or 5 lines from a judgment, and italics में आप verbatim अगर quote कर रहे हो तो definitely put it in italics. But copying 2 paras it seems, personally to me, it will seem as if बच्चे प्रोजेक्ट में ये करते हैं. ठीक है, तो मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ, मुझे पता है कि अगर कोर्ट का जजमेंट से कॉपी करके पेस्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट में, तो वो पन्ने बढ़ाने के लिए करते हैं बच्चे, ना कि अपना आर्ग्यूमेंट सब्सटैंशिएट करने के लिए. बट अगर आपको केशव ऐसा लगता है कि दोस 2 पैराग्राफ्स आर द सोल एंड जिस्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, नो वन स्टॉपिंग यू फ्रॉम पेस्टिंग दोस 2 पैराग्राफ. बट एक पैराग्राफ से ज्यादा अगर है तो कोशिश करो कि उसको अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करने की. Do we need to submit a copy of the transcript to the bench during the oral round? Never. You never submit the copy of the transcript. Neither can the judge ask you to submit the copy of the transcript. That's not an official document. Transcript is for your own and for your own disposal. Memorial जो होता है, that is an official document. वो bench को submit किया जाता है. Compendium official document होता है, bench को submit किया जाता है. Transcript is not an official document. Is there any difference in drafting and formatting style of making memorial for international and national moods? Good question. Again, huge difference. I would, rather than categorizing these moods in international or national categories, I would like to categorize them under tier 1, tier 2, tier 3 moods. In India also there are
a couple of moods, for example, ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो मूड्स होते हैं उनके जो नेशनल राउंड्स होते हैं, इनके अलावा बी आर साहनी हो गया, और भी बहुत सारे मूड्स हैं जिनमें ड्राफ्टिंग स्टाइल और फॉर्मेटिंग स्टाइल अलग होती है। तो फॉर्मेटिंग स्टाइल मोस्टली अलग होती है, ड्राफ्टिंग स्टाइल तो सेम रखनी चाहिए। ड्राफ्टिंग स्टाइल चाहे छोटा मूड हो चाहे बड़ा मूड हो, यू शुड गो विद एज बेस्ट एज यू कैन ड्राफ्ट। बट फॉर्मेटिंग में यू शुड नॉट डू दैट। फॉर्मेटिंग में देखो भाई, नेशनल अगर टियर 3 मूड है ना, तो उसमें कॉलेज में जो जज करेंगे उनको बॉर्डर्स, अच्छा इतना बढ़िया बॉर्डर बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, ओफो, तो वो ऐसे जज करेंगे, आपको मार्क्स अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग में एक और चीज होती है, व्हेन अ मेमो इज वेरी नाइसली फॉर्मेटेड एंड वेरी हेवीली फॉर्मेटेड, तो अ गुड फॉर्मेटेड मेमो लेट्स द जज टू इग्नोर छोटे छोटे जो ड्राफ्टिंग में एरर्स होते हैं, वो निकल जाते हैं आंख से। लेकिन अगर मेमो में फॉर्मेटिंग गंदी है तो फिर वो ड्राफ्टिंग एरर्स भी दिखने लगते हैं। तो हाँ, इंटरनेशनल मेमो में फॉर्मेटिंग जो होती है वो लाइट होती है, बहुत ज्यादा हैवी फॉर्मेटिंग नहीं होती है। हाउएवर नेशनल मूड्स में जो टियर 3 मूड्स हैं, टियर 2 मूड्स हैं, उनमें यू कैन गो विद हैवी फॉर्मेटिंग, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू हैव लुक्ड एट द पास्ट बेस्ट मेमोरियल्स, जो भी उन्होंने किया हुआ है, दैट इज द बेस्ट क्लू। मेरे से ज्यादा अच्छा वो पास्ट बेस्ट मेमोरियल बताएगा आपको कि आपको क्या करना है। Okay, Harshada, I think it's answered. How about to go sir rebuttal round? Sir rebuttal में you just point out never. हाँ, sir rebuttal में one mistake which students do is they rebut on the rebuttal. तो if at all अगर कुछ rebuttal जो petitioner ने दिया है वो पूरा एक थीम पे था, तो आप कोशिश करो कि उस थीम को आप डिस्ट्रक्ट कर दो कि ये rebuttal जो था ये गलत था। लेकिन अगर petitioner ने 5-6 चीजें बोली हुई है ना, कि ये इन्होंने ये गलत बोला, इन्होंने ये गलत बोला, तो rather than contesting each of that point, you could also go with, you know, जो भी तुम्हें उसके मेमो में दिक्कतें मिली, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स में दिक्कत मिली, you could just point them out. सर रिबटल जो होगा वो हमेशा रिस्पोंडेंट करेगा, नॉट द petitioner. Is there any limit to use IBID or Supra in footnotes? There is no limit to use IBID or Supra. IBID एंड सुप्रा में आपको बता दूं, IBID और सुप्रा ब्लू बुक टूल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। IBID इज द टूल जो आप जस्ट ऊपर, इमीडिएटली ऊपर जो साइटेशन है, अगर वही नीचे आप कॉपी कर रहे हो तो यू राइट IBID। हाउएवर अगर आप जो साइटेशन लिख रहे हो वो इमीडिएटली ऊपर नहीं है, लेकिन कहीं और ऊपर आप लिख चुके हो, फॉर एग्जाम्पल 30th फुटनोट में आप 12th फुटनोट का साइटेशन डालना है आपको, तो आप 30th फुटनोट में लिख सकते हो सुप्रा नोट 12, दिस मीन्स कि गो टू सुप्रा टू नोट 12, कि वही वाली साइटेशन मैंने यहाँ पे डाली। दिस इज IBID इन सुप्रा फॉर ऑल हू डोंट नो। सर, could you give an example of secondary binding source? Could you please expand the ILAT term? There is no secondary binding source in the world. Damn, it feels good to speak, to utter absolute statements. बहुत अच्छा लगता है, but it's true. There is no secondary source in this world which is binding, and not all primary sources are binding everywhere. यूएस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यूरोपियन यूनियन ने भी एक लॉ बनाया था प्राइवेसी पे, इंडिया में भी उसको हम प्राइमरी सोर्स समझेंगे बिकॉज दैट लॉ हैज एन ऑफिशियल सैंक्शन, बट दैट वोंट बी बाइंडिंग इन इंडिया। तो परसुएसिव और बाइंडिंग अलग चलेगा और प्राइमरी और सेकेंडरी अलग चलेगा। तो कोई भी ILAT, it's not ILAT, it's ILAC. I'll write for everyone. ILAC. It's issue, law, argument, and conclusion. How to figure out and rely on good secondary sources. Okay, this is a genuine doubt amongst many. Famous commentaries होती हैं, आप लोगों को गूगल पे मिल जाएंगी सारी commentaries, and कुछ traditional commentaries we have provided actually lists are in our course. I hope we'll be able to release that list in a while. Probably this month we'll be releasing a list, we'll be putting up a list on our website जिसमें कि secondary sources, जो सबसे important secondary sources हैं with respect to every law, around 60 to 70 laws जिन पे moot courts बनते हैं, we have prepared a list, we'll be releasing it, but figure out करना है तो हाँ, author का value देखते हैं सबसे ज्यादा। तो ये जो book लिखी गई है वो author कौन है और उस author का background क्या है। For example, International Commercial Arbitration में एक book है, I don't remember the name of the author, but that author himself is the authority. जो ICJ में जो केसेस डिसाइड होते हैं वो भी उस ऑथर को ही साइट करते हैं जजेस। तो द नेम ऑफ द ऑथर डिपेंड ऑन, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। So can you state some common phrases that should be used in oral arguments and memorials? There are a lot.
देयर आर अ लॉट. मतलब सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट है वो क्या, हाँ, मेरे को जब टाइम मांगना होता था, जब से मेरा आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया है, टाइम, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं खत्म हुआ है, टाइम खत्म हो गया है, तो मैं बोलता था, Your Lordship, in the interest of justice, equity and good conscience, the council would like 2 more minutes of this honorable court. तो ऐसे करके आप you just there are a lot of every time you ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि कुछ कॉमन फ्रेजेस मुझे मिल जाए जो मैं अपने में यूज कर सकूं. कोई एक सेट लिस्ट नहीं है कॉमन फ्रेजेस की. लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा फॉलो करते हो. whenever you are submitting an argument you always state your lord the council submit, है ना. या फिर every time you end something and you want to see, you always should seek the permission of the judge to proceed. If your lordship is satisfied with the pleading, the council would like to proceed to the next issue. कुछ ऐसा टफ नहीं है, कुछ ऐसी अनोखी इंग्लिश नहीं बोली जाती है जो आपको नहीं आती है. You just need to get used to. And I told you कि वो जेसअप में भी जो बच्चे गए थे उन्होंने फर्स्ट ईयर्स के सामने इतनी प्रैक्टिस करी थी. तो you if you practice you will get a good command on the phrases. It is compulsory that the speaker want to be one. Is it compulsory speaker? No, not at all. Shraddha, it is not necessary for speaker 1 to go for the rebuttal. Speaker 2 can also go for the rebuttal. So he is asking, sir, can you please explain substantive issue and procedural issue? Okay, it will take 2 minutes or 3 minutes of my time, of your time, but समझ लेना ध्यान से. सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल दो तरीके के इश्यूज होते हैं. प्रोसीजरल मतलब भाई प्रोसीजर से डील कर रहा है, ऑब्वियसली बिल्कुल आसानी से मैं समझा रहा हूँ. ट्राई एंड अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड. कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 भी है, 19 भी है, 21 भी है. 14 कहता है कि भाई सारे सिटीजन इक्वल हैं. 19 कहता है सारे सिटीजन को फ्रीडम है. 21 कहता है एवरी सिटीजन है, एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ. अब अगर मेरा आर्टिकल 14 और ये सारे जो राइट देने वाले प्रोविजंस होते हैं या फिर ड्यूटी इंपोज करने वाले जो प्रोविजंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सब्सटैंटिव प्रोविजन. ठीक है. हाउएवर अगर मेरा आर्टिकल 14 जैसे कि आर्टिकल 21 अभी हम एग्जांपल ले रहे थे राइट टू स्पीच का जो हमने इशू डिजाइन किया था वो आईलैक के चारों, राइट टू स्लीप का. अगर मेरे घर के बगल में स्टेट कोई बिल्डिंग बनवा रहा है और मेरा आर्टिकल 21 डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा राइट फंडामेंटल राइट टू स्लीप इज बीइंग ब्रीच्ड बाय द स्टेट, तो मैं करूं क्या? मेरा सब्सटैंटिव जो मुझे राइट मिला हुआ है वो ब्रीच हो रहा है. तो सब्सटैंटिव प्रोविजन जब ब्रीच होता है उसके रिड्रेसल के लिए आपको प्रोसीजरल प्रोविजन दिए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 जो है हमारा, वो ये कहता है कि भाई जो हमने आपको फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, अगर स्टेट उनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट पे एनक्रोच करता है कैसे भी, तो 32 के अंडर मैं तुम्हें प्रोसीजर देता हूं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा. So understand like this: whenever a substantive provision is encroached upon, we seek the redressal of that substantive substantive issue from a procedural provision. For example, CPC में सेक्शन 9 है, वो हमें अलाउ करता है कि आपको कोर्ट कैसे जाना है. प्रोसीजरल लॉज अलग हैं, सब्सटैंटिव लॉज अलग हैं. CPC, CRPC, सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारे प्रोसीजरल लॉज हैं. लेकिन आईपीसी में सब्सटैंटिव क्राइम है कि भाई अगर आपने किसी की, आपने फोन उठाया है, फोन आपके एक्सेस में नहीं था, किसी और जगह से उठाया है, तो इट्स थेफ्ट. So the provisions which are defining the crime, defining the rights, defining the duties, they are all substantive, while the provisions which allow you the procedure to approach the court or any forum, they are procedural laws. और उन पे जो issues बनते हैं वो procedural issues हो जाते हैं. Sir, in your memo, should we write about even the issues that are to be dealt by the second speaker for safety? Definitely, memo is a wholesome document. Memo में आप सब कुछ जो whatever you need to do, आप स्पीकर 1 के आर्ग्यूमेंट, स्पीकर 2 के आर्ग्यूमेंट, इट डज नॉट मैटर आप कौन से मेमो में, अगर 4 इश्यूज आपको डील करने ना, तो वो चारों मेमो में होंगे. एंड व्हेन द मेमो इज मेड, देन यू डिसाइड कि भाई ये वाले 2 इश्यूज मैं कर लेता हूँ, ये वाले 2 इश्यूज तू कर ले. तो मेमो नीड्स टू हैव बोथ द आर्ग्यूमेंट्स, देयर नीड नॉट बी सेपरेट मेमोरीज फॉर सेपरेट. Do we need to mention any evidence we might be having to support the case in the memo? You need not mention evidences in normal moot court competitions. However, in trial law moot courts, which are gaining traction over a couple of years now, there you use evidences.
एंड उसमें भी एविडेंस बहुत ज्यादा ओपन नहीं होता है, आप पे थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है पेपर्स भी, वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप उनको एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हो, बट नॉर्मल मूड कोर्ट्स में देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड एविडेंस, आप उसमें बस अथॉरिटी साइड करो, अपना कॉम्पेंडियम दे दो, दैट विल बी इट. Okay, thank you. Where do we find previous year's best memorial? इंटरनेट पे बहुत सारे हैं यार, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा. So please could you state some examples of primary source? Okay. Primary, as the word suggests, it needs to have the back of the government. सैंक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट का. सैंक्शन तीन तरीके से हो सकता है, या तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, किसी का भी सैंक्शन हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही हो, उसके पास किसी का सैंक्शन नहीं है, उसका सैंक्शन सबके पास है. तो कॉन्स्टिट्यूशन और इन तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट से जो भी लॉ निकलता है, ये सारा कुछ हमारा प्राइमरी लॉ होता है. Have we answered each and every question? That's what I'm afraid of. किसी को अगर कोई भी query हो, you can ask. Okay, thank you Snehan, thank you Rochit, thank you Yuvraj, thank you everyone for being so patient. I think the queries are rested for now. Yeah, I think we are done and dusted. And thank you, sir, for taking this time, for being so flexible with your time and extending this session. Also for addressing each and every question so meticulously and reiterating yourself on so many occasions. I'm sure everyone enjoyed this webinar and learned from it thoroughly. And like I said, please log on to the website and check out the competition that I mentioned. And thank you everyone for being such a wonderful audience. I think we are done with this webinar for now. Also, as far as your certificates are concerned, those of you who selected yes on the form, we will be dispatching certificates in a period of 7 to 8 days. So please bear with us. Yeah, anything else you want to add, sir? No, I think that's it. Thank you so much for being so patient. बीच में किसी का एक का वो म्यूट मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, but okay. So yes, it was a great webinar, really helpful. Thank you so much, Udita. Thank you, Ayushi. Thank you, everyone. Thank you for asking questions. And I really hope that you guys moot now in these testing times. Most of the colleges are coming up with online moot court competitions. Go for it. उसमें मतलब आपको आप अपने मेमो से पढ़ के बोल भी सकते हो, बहुत ज्यादा पता नहीं लगेगा जज को. So you have certain advantage of for going for an online moot. So jokes apart, just try and go for a moot. It will be fun if you haven't done it, and if you have done it, so फिर you just polish up your skills or sit. All the best, all you guys, for your future endeavors, and stay safe, stay home. Also, anyone who missed out on certain parts of this session has been recorded and will be up and running on our YouTube channel in a couple of days. So I'll be sharing the link of our channel. Please make sure you subscribe. So yeah, I think we are ready to end this webinar. Okay, perfect. All right. Bye bye, guys. Thank you, sir. Thank you so much, Sarjeet. Thank you for having me. It was my pleasure, sir. Have a good day. Same to you, Sarjeet. All right, guys. Bye bye. Bye bye bye.